Good afternoon. Good afternoon. So first, I will ask you some questions. You have to answer me that questions. First question is, what is the direction of magnetic field outside a magnet? What is the direction of magnetic field outside a magnet? Yes, Riya Rani. Yes, Chirag, Vridhi. Answer is north to south. Because we all know that this is a bar magnet. Outside, if this is north pole, this is south pole, then outside will be from north to south. But inside the magnet, south to north. Inside the magnet, it will be south to north. Now, what is the direction of magnetic field lines inside a magnet? What is the direction of magnetic field lines inside a magnet? Yes, Manmeet, Hargun, Chirag, Tanish, Vridhi. Abhinandan, you please concentrate on questions. All students are typing the answer. You can also type the answer. Now, next question is, what does the crowding of magnetic field line indicates? What does crowding of magnetic field lines indicate? Arshia, magnet is strong. What does crowding of magnetic field line indicates? Yes, Manmeet, right answer. Ridhima, right answer. Riya Rani, right answer. It indicates that region has strong magnetic field. Strong magnetic field, not strong magnet. Magnet strong नहीं, magnetic field strong. At what place the magnetic lines are more denser? At what place of the magnet magnetic field lines are denser? At what place the magnetic field lines are denser? Yes, Riya Rani. At what place the magnetic field lines are denser? At what place of magnet magnetic field lines are denser? Where magnetic field lines are denser? ज़्यादा denser कहाँ पे होती हैं? अब देखो, सपोज करो ये हमारी मैग्नेट है। तो आप कोई भी चीज देखो, जब पानी पाइप से निकलता है तो ये वाले पॉइंट पे पानी ज्यादा होता है ना। जैसे पानी बाहर की तरफ जाता है तो वो क्या हो जाता है?
इट्स सेम लाइक पाइप, जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, निकल कहाँ पे रही हैं, ये जहां से एंटर हो रहा है वहां पे जो लाइंस हैं वो क्या होंगी, ज्यादा डेंसर होंगी, इसीलिए पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द अदर पार्ट ऑफ द मैग्नेट। सेंटर पे या अलोंग द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो लेस होती है एज कंपेयर टू द पोल्स। समझ आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन? एट व्हाट प्लेस ऑफ मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डेंसर? कि मैग्नेट की कौन से पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं डेंसर होती हैं? तो लाइक एट द पोल्स, क्योंकि जहां से पानी निकलता है वहां पे बिल्कुल मीन्स की मैक्सिमम वाटर होता है, आफ्टर दैट वो स्प्रेड हो जाती हैं। तो डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? नियर द पोल। एक और क्वेश्चन आ जाता है, वेयर इज मैग्नेटिक फील्ड एट व्हाट पॉइंट ऑफ मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट? At what point of magnetic field is strongest? At what point of magnetic field is strongest? Yes, very good. Right answers, all student. At the poles, because their magnetic field line density is maximum. Therefore, the magnetic field is strongest at the pole as compared to the other part of magnet. Now, next question is, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन तो सबको आती होगी कि द मैग्नेट द एरिया अराउंड मैग्नेट वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी फील्ड या influence can be felt by a magnetic substance is known as magnetic field. Now next question is, my next question is, what is the what are the two main property of magnet? What are the two main properties of magnet? What are the two main property of magnet? What are the two main properties of magnet? Answer, please. Yes, Tina, right answer. Uh, Vasu, what are you asking? Yes, Keshav, right answer. The two main properties of magnets are attractive property and directive property. Attractive property, okay. Attractive property and directive property. Yes, Vasu, your holidays homework I received. Attractive property and directive property. Attractive property means it can attract the magnetic substances, ठीक है? And the directive property means whenever it is magnet is suspended freely, जब उसको freely हम suspend करते हैं, then we it tells us about the direction. Now our next new topic is, which is main topic of this chapter, relationship between electricity and magnetism. Relationship, our chapter is magnetic effect of current, ठीक है? So now we will discuss that topic, relationship between electricity and magnetism.
as we know, earlier it was, yes, earlier it was considered that there is no relationship between electricity and magnetism. But in 1819, a scientist Hans Christian Oster discovered a relationship between electricity and magnetism. He found out that a wire carrying current causes a deflection in the needle of magnetic compass. So it will be deflected from its equilibrium position to another magnet close to each other. As the magnetic compass placed near the current carrying wire deflect from its equilibrium position, current carrying wire behave as a magnet. So what he observed, अब देखो इफ आपने मैग्नेटिक कंपास आपने देखी होगी, मैग्नेटिक कंपास में क्या होता है कि उसके राउंड शेप की मैग्नेट होती है, यहाँ पे उसके सेंटर में एक मैग्नेट लगी होती है, ठीक है, छोटी सी टाइनी मैग्नेट लगी होती है और इसके ऊपर एक नीडल लगी हुई होती है, इसके ऊपर एक नीडल लगी हुई होती है, देयर इज अ राउंड शेप मैग्नेट और उसके ऊपर एक नीडल लगी हुई होती है। तो व्हेन एवर, अब आप देखो अगर एक मैग्नेट है तो वो मैग्नेट किसी मैग्नेट के इफेक्ट की वजह से ही क्या होगा, जो मैग्नेट है वो किसी मैग्नेट की इफेक्ट की वजह से ही क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी, यस और नो। अगर एक मैग्नेट है तो वो एक मैग्नेट की इफेक्ट की वजह से ही डिफ्लेक्ट होगी। अब मैग्नेट के पास आयरन लेके आओगे तो मैग्नेट नहीं डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, क्योंकि आयरन उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, या मैग्नेट के पास कोई और मटेरियल लेके आओगे तो मैग्नेट उसके साथ इफेक्टेड नहीं होगी, बट हम एक मैग्नेट के पास एक और मैग्नेट लेके आएंगे तो वो उसको अट्रैक्ट या रिपेल के ऊपर ये निडल लगी हुई है, तो जब ये मैग्नेट रोटेट करेगी तो ये निडल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से मूव करेगी किसी न किसी डायरेक्शन में, चाहे वो राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाए चाहे वो लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाए, यस और नो। when the magnet at center will interact with other magnet, वो किसी दूसरी मैग्नेट के साथ इंटरेक्ट करेगी तो वो रोटेट करेगी, ठीक है, तो रोटेट करेगी तो उसके ऊपर जो निडल लगी हुई है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में तो नहीं रहेगी, वो या तो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होगी या किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी, राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। तो जो ऑस्टर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था वो उसने मैग्नेटिक कंपास के साथ किया था और एक वायर में से करंट फ्लो करवाया और इन दोनों ऑपरेटर्स के साथ क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। अब आपको देखो मैग्नेटिक कंपास दिखेगी, इस शेप की मैग्नेटिक कंपास होती है, उसमें ऐसे सेंटर में यहाँ पे मैग्नेट होती है और उस पे नीडल लगी हुई है, तो ये राइट डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है, लेफ्ट डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है। अब हम इसका करंट के साथ रिलेशन देखेंगे। सी इन द फिगर नंबर 12, इन फिगर नंबर 12 देयर इज अ मैग्नेटिक वायर, मेटेलिक वायर दिस वन, ठीक है, ए बी इज अ मेटेलिक वायर जिसको हमने किस डायरेक्शन में रखा हुआ है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमने प्लेस किया हुआ है, एंड उस वायर में से क्या फ्लो हो रहा है, बैटरी लगी हुई है, ठीक है, की क्लोज है हमारी, तो इट मीन इस वायर में क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, दिख रहा है सबको। फिगर ए देखो पहले, फिगर ए देखो, एक मेटेलिक वायर है उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है करंट, मुझे देख के बताना, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस फिगर, फिगर ए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन फिगर ए। Yes, Arshia. Right answer, Chirag. So all we can say that arrow is pointing towards A to B. It means current is going from A to B. कि हमारा करंट जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव A to B जा रहा है। तो जब करंट A to B जा रहा था
तो जब उसने मैग्नेटिक कंपास रखी, अब ये यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास रखी हुई है ये वाली, ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास रखी हुई है उसने, तो उसने क्या देखा कि जो हमारी मैग्नेटिक कंपास की निडल थी वो कौन से डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही है, राइट में या लेफ्ट में। मैग्नेटिक कंपास की निडल जो है वो कौन सी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही है, इन द राइट डायरेक्शन। तो इट मीन्स अगर मैग्नेटिक कंपास की निडल डिफ्लेक्ट हो गई, इट मीन्स जो वायर है दैट इज एक्टिंग एज अ मैग्नेट, दैट इज एक्टिंग एज अ मैग्नेट, यस और नो। इसीलिए मैग्नेट कंपास की जो निडल है वो डिफ्लेक्ट हुई है, क्योंकि अगर वो वायर में, फिर उसने क्या किया, पहले इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करवाया, इफ देयर इज नो करंट फ्लोइंग इन द वायर, अगर करंट में वायर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक नीडल थी वो डिफ्लेक्ट नहीं हुई, ठीक है। जब उसने करंट फ्लो करवाया फ्रॉम ए टू बी, तो क्या हुआ, मैग्नेटिक नीडल जो है वो क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई टुवर्ड्स द राइट। फिर सेकंड फिगर में देखो उसने क्या किया है, सेकंड फिगर में ऑब्जर्व करो उसने क्या किया हुआ है, क्या चेंज किया उसने सेकंड फिगर में, देखो व्हाट इज द चेंज इन सेकंड फिगर। डायरेक्शन ऑफ करंट, वेरी गुड। सेकंड फिगर में उसने करंट की डायरेक्शंस को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेटिक कंपास की जो निडल है उसकी डिफ्लेक्शन भी कौन सी डायरेक्शन में हुई, टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो इट मींस अगर जो वो पहले मैग्नेट बनी थी, सपोज करो जो पहले मैग्नेट बनी थी उसका ये वाला एंड नॉर्थ था, ये वाला साउथ था, ठीक है, बट करंट की डायरेक्शन उल्ट होने से जो मैग्नेट अब दोबारा मैग्नेट बनी है, ये वाला एंड साउथ बन गया, ये वाला एंड क्या बन गया, नॉर्थ बन गया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक कंपास की जो निडल है उसकी डिफ्लेक्शन में चेंज आएगा ही, क्योंकि पोलैरिटी चेंज हो रही है, पोल्स चेंज हो रहे हैं करंट की डायरेक्शन चेंज करने से, पोल्स चेंज होंगे तो डिफ्लेक्शन में भी मतलब चेंजेस आएंगे। फिर थर्ड केस में उसने जब करंट जीरो कर दिया, ठीक है, करंट जीरो कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड फिर से अपनी मैग्नेटिक कंपास की जो निडल है वो फिर से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गई। तो इससे उसने क्या मतलब कि रिजल्ट क्या निकला, ये ऑस्टेड का पूरा एक्सपेरिमेंट था। आपको एक्सपेरिमेंट समटाइम पूरा एक्सप्लेन करना भी आ जाता है, तो आपने सबसे पहले क्या लिखना है कि उसके लिए सेटअप क्या लिया उसने, एक मेटालिक वायर ली, ठीक है, उसको मैग्नेटिक कंपास है जो उसके जस्ट बिलो रखी, उसके नीचे रखी एक मैग्नेटिक कंपास, एंड उस वायर को कनेक्ट किया बैटरी के साथ। एक बार उसने करंट फ्लो करवाया ए टू बी, ठीक है, दूसरी बार उसने करंट फ्लो करवाया बी टू ए। तो दोनों केसेस में जो मैग्नेटिक नीडल की रिफ्लेक्शन आई थी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में थी। इट मीन्स कि अगर फर्स्ट केस में लेफ्ट में आ रही है तो सेकंड केस में क्या आएगी, राइट में, अगर फर्स्ट केस में राइट में आ रही है तो सेकंड में किस में आ रही है, लेफ्ट में आएगी। तो ये ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। चारू मैंने क्या रिपीट किया है कि जो भी उसने एक्सपेरिमेंट किया वायर के नीचे कंपास रख के, उसमें उसने जो ऑब्जर्वेशंस नोट की कि जब उसने करंट की डायरेक्शन ए टू बी रखी तो वो राइट में मूव कर रही थी निडल, अगर उसने बी टू ए की तो मैग्नेटिक निडल कौन सी डायरेक्शन में आ गई थी, लेफ्ट में। बट व्हेन देयर इज जीरो करंट तो मैग्नेटिक निडल जो है वो अपनी प्लेस पे ही रही, ना ही वो लेफ्ट में गई ना ही वो राइट में गई। इट मीन्स कि जो भी मैग्नेटिक निडल में इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, करंट की वजह से। मैग्नेटिक नीडल में जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहे हैं, करंट की वजह से। और करंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन करंट, करंट ने कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस किया है, मैग्नेटिक इफेक्ट, तभी वो दूसरी मैग्नेट को इफेक्ट कर रहा है।
नाउ अब हमें ये कैसे पता चलेगा, हाउ वी विल कंक्लूड। यहाँ पे तो हमने वायर थी ए से बी से ए करंट फ्लो करवा के देखा, जिसकी वजह से हमें पता चल गया कि करंट फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक नीडल राइट जाएगी या लेफ्ट जाएगी। अब कोई जर्नल रूल भी तो होना चाहिए। अब करंट की डायरेक्शन तो अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। करंट तो अपवर्ड भी फ्लो कर सकता है, डाउनवर्ड भी फ्लो कर सकता है। तो अब उसने क्या रूल दिया, फिर एम्पियर ने इसका रूल दिया, एम्पियर ने एम्पियर स्विमिंग रूल दिया। उसमें उसने इसको किस सिचुएशन के साथ रिलेट किया कि सपोज कर लो ये वायर है हमारे पास, दिस इज अ वायर, इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे तो इस डायरेक्शन में जा रहा था, ये ए टू बी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब हमें इसमें बताना है कि लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा, क्या आप बता सकते हो। ए टू बी करंट फ्लो रहा है, कैन यू टेल वेदर, यहाँ पे हमने एक कंपास रख दी, इसके सामने एक कंपास रख दी, कि उसकी जो नीडल है वो लेफ्ट में मूव करेगी या राइट में मूव करेगी। इसका जो रूल है वो एम्पियर ने दिया था। एम्पियर ने क्या कहा था कि जब भी हमें कोई ऐसी सिचुएशन मिल रही है कि किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है, तो आप क्या करो, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, सपोज कर लो कि उस डायरेक्शन में एक स्विमर जो है वो स्विम कर रहा है। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में सपोज कर लो कि एक स्विमर जो है वो क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, और जो करंट है उसके फीट में से एंटर कर रहा है और हेड में से बाहर निकल रहा है। फीट में से एंटर कर रहा है और हेड में से बाहर निकल रहा है। तो अगर करंट फीट में से एंटर करके हेड में से बाहर निकलेगा, तो इट मींस जो निडल की डिफ्लेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड होगी, वो टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड, टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड ऑफ द स्विमर। If current is entering from feet and exit from head, फीट में से एंटर करके हेड में से बाहर करंट निकल रहा हो, तो इट मींस जो डिफ्लेक्शन होगी वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब इसी सिचुएशन को करो, मैंने डाउनवर्ड कर दिया। अब बताओ, ऐसा नहीं है कि अब ऐसा करो स्विमर की डायरेक्शन चेंज कर दो, कि स्विमर को इस डायरेक्शन में रख दो। जैसे पहली डायरेक्शन में एक ही वायर में दो बार करंट फ्लो करवाओगे, एक बार अपवर्ड एक बार डाउनवर्ड। ऐसा नहीं है कि अब स्विमर की डायरेक्शन चेंज कर दो कि स्विमर उल्टा इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। स्विमर वही उसी डायरेक्शन में रहेगा जिसी डायरेक्शन में आपने पहले रखा था उसको। बस अब उसके फीट इधर, अब इधर उसका हेड था पहले, इधर फीट थे, हेड और फीट तो वही है, उसी डायरेक्शन में रहेंगे, वो तो उसी डायरेक्शन में जा रहा है स्विमर। बट अब करंट जो है वो हेड से एंटर हो रहा है और फीट से बाहर निकल रहा है। इट मीन्स वो निडल कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, राइट डायरेक्शन में जाएगी। अगर हम मैं दोबारा से इसको चेंज कर दूं, दोबारा से फिर से चेंज कर दूं, अब कौन सी डायरेक्शन में जाएगी निडल, अब कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, लेफ्ट में जाएगी, क्योंकि अब फीट में से एंटर कर रहा है और हेड में से करंट बाहर निकल रहा है। ये जस्ट हमने सपोज करना है कि कोई भी कंडक्टर दे दूं मैं आपको, ठीक है। तो अभी एक और सिचुएशन देखते हैं। ये क्लियर हो गया ये वाला पेज, ऑस्टर का एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया कि ऑस्टर का एक्सपेरिमेंट क्या था। उसने एक वायर में से करंट फ्लो करवाया, उसके पास एक मैग्नेटिक कंपास रखी, तो उसने देखा कि मैग्नेटिक कंपास में, मैग्नेटिक कंपास में क्या हो रही है, डिफ्लेक्शंस हो रही हैं। इसको अगर हमने ओवरऑल देखना हो
तो ओवरऑल कैसे एक्सप्लेन करोगे ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट को कि इफ देयर इज अ मैग्नेटिक मेटेलिक वायर जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, उसके पास कंपास रखोगे तो उसमें तभी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी जब उसके पास कोई मैग्नेट रखेंगे। बट उसने मैग्नेट नहीं रखी, उसने क्या रखा, एक करंट कैरिंग वायर रख दी। तो करंट कैरिंग वायर रखने से भी मैग्नेटिक कंपास में इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे थे। इट मीन्स जो करंट है वो कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था, वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था। तो उसकी डायरेक्शन को देखने के लिए कि कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, उसके लिए जो हमें रूल दिया था वो किसने दिया था, एम्पियर ने। एम्पियर स्विमिंग रूल दिया कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, लेट कर लो कि उस डायरेक्शन में एक स्विमर जो है वो स्विमिंग कर रहा है, तो करंट उसके फीट में एंटर करेगा और हेड में से बाहर निकलेगा। तो जो उसकी निडल की डिफ्लेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड होगी। बट अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे तो हेड में एंटर करेगा, फीट में से बाहर निकलेगा, तो निडल की डायरेक्शन हो जाएगी हमारी टुवर्ड्स द राइट हैंड। दोनों चीजें क्लियर होगी, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट एंड एम्पियर स्विमिंग रूल। जितने कैंडिडेट्स हैं, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, राइट यस अगर आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं, ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट एंड एम्पियर स्विमिंग रूल। रिया रानी, व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट इज द प्रॉब्लम रिया रानी? I will upload this video on YouTube and send you the link in group. ठीक है, I will upload this video in on the YouTube and send you link in the group. आप वो ग्रुप में देख लेना, ठीक है। जिसको नहीं कुछ क्लियर हुआ, अभी नेट की प्रॉब्लम है या आवाज नहीं आई क्लियर, यू कैन check it on the YouTube. So next, sometime sometimes आपको एक कहा जाता है स्नो रूल। स्नो रूल आ जाता है, ये एम्पियर स्विमिंग रूल को ही स्नो रूल भी कह देते हैं समटाइम्स। ठीक है, अब इसकी स्टेटमेंट देखो क्या है, इसको याद रखने का वे क्या है कि इफ करंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, करंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, द निडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट। डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, टुवर्ड्स वेस्ट। ये देखो करंट कहाँ है, साउथ टू नॉर्थ, एस मीन साउथ, एन मीन्स नॉर्थ ऑफ वायर, साउथ टू नॉर्थ करंट है, तो डिफ्लेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होती है, वेस्ट में। ये याद रखने का वे है। अगर एम्पियर स्विमिंग रूल नहीं लगा रहे तो यहाँ पे स्नो रूल भी लगा सकते हो आप। चेक कर लो कि करंट साउथ टू नॉर्थ है और इसका वाइस वर्सा भी होगा। अगर नॉर्थ टू साउथ करंट फ्लो करेगा तो वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, फिर ईस्ट में जाएगी। पता चला स्नो रूल। इफ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, current is flowing from south to north, then deflection will be towards west. Deflection will be towards west. अब सपोज करो
This is a wire in this direction and current is flowing in this direction. Then what will be the deflection of needle in which direction needle will deflect? In which direction needle will deflect? Yes, Yuvraj Jain, right answer. चिराग इसमें लेफ्ट नहीं कहना, अकॉर्डिंग टू स्नो रूल बताओ. Current is going from A to B. Then according to snow rule, in which direction needle will deflect? Yes, Simran, right answer. अब यहाँ पे डायरेक्शंस ड्रॉ करो. ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया. अब करंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? साउथ टू नॉर्थ जा रहा है कि नॉर्थ टू साउथ जा रहा है? डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग बताओ. करंट ए टू बी जा रहा है, युवराज जैन. ए टू बी करंट जा रहा है. दिस इज बी. दिस इज बी और इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है. करंट जा रहा है ए टू बी मीन्स नॉर्थ टू साउथ. तो जो हमारी निडल है वो कौन सी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी? टुवर्ड्स द ईस्ट. ऐसे रखेंगे ना इसको. मैंने कंपास गलत रख दी. कंपास को ऐसे रखोगे आप. तो ये इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी. हमें जो कंपास रखनी होती है वो डायरेक्शन के अलोंग रखनी होती है. जिस मतलब कि जिस डायरेक्शन में हमने कंडक्टर रखा हुआ है उसी डायरेक्शन के अलोंग हमें क्या रखनी होती है? हमारी कंपास रखनी होती है. निडल की डायरेक्शन डिफ्लेक्ट होनी है वो बाद में पता चलेगा कि कौन सी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही है. So this was for today's class topic. Today we discussed 3 topics. Oersted experiment, आज हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए हैं. ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट, एम्पियर रूल और स्नो रूल. बाकी इसकी एप्लीकेशंस नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. बी रेगुलर इन योर क्लास. अपनी अटेंडेंस फॉर्म फिल किया करो, ठीक है, प्रॉपरली. जो आज 2-3 मोस्ट कई स्टूडेंट 2-2 3-3 क्लासेस एक साथ बैठ के लगा रहे हैं, तो आप अपनी अटेंडेंस फॉर्म फिल कर देना. अभी मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो भेज रही हूँ यूट्यूब की, ठीक है, इस ऑस्टर के एक्सपेरिमेंट की, ठीक है. वो वीडियो देखनी है अभी सबने आफ्टर दिस क्लास. प्रैक्टिकली इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन भेज रही हूँ, वो वीडियो आपने देखनी है अभी आफ्टर दिस क्लास, तो आपको क्लियरिटी होगी. आई विल आस्क यू द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास रिगार्डिंग दैट वीडियो. Yes, recording will also available on the YouTube.
I will send the link.